Let me just introduce our guest today. We got somebody special today, somebody who has a big profile. So let me just read it through. She's an MBA finance and she has a 18-year career with banking and securities. She's worked with major brands like ICICI, SBI, Reliance, and of course, she's worked with one of the sharks, Anupam Mittal, directly while her stint at Shadi.com. Yes, so here we go. We welcome holistic coach Rashna Patel. How are you? I'm good, Darshan. Thank you so much. Great. Now, I understand that Rachna, you hang up your boots to the corporate career and you started a wellness firm, a holistic wellness firm to be precise, and throw some light on that. What made that move? How was your journey, and what breakthrough happened? Darshan, to be very honest, I was doing pretty well in my corporate career. I mean, there was no trigger for me to switch, corporate career से लेकर to into something very different. बट हाँ, एक कीड़ा तो जरूर था कि मुझे कुछ अपना करना था. वो कीड़ा तो Okay, बहुत पहले से था. okay. And so I said that it was a very what do you say? It was a very calculated move, I can Mm-hmm. say, because क्या था, करियर में तो अच्छा हो ही रहा था. I had 1 year of cushion in terms of money, finances were in place. तो Of मैंने course, सोचा ट्राई तो. you are a financial expert, so you make Yes, sure yes. I'm आपके a finances are MBA in in finance. place. Yeah, Correct. MBA in finance. तो क्या था कि मेरे फाइनेंसेस भी सॉर्टेड थे. तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए. ठीक है, Okay. तो मैंने इसीलिए स्विच किया. एंड आई थॉट दैट अगर नहीं वर्कआउट होता है देन आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माय कॉर्पोरेट करियर, Mm-hmm. because I had so many years of work experience, and I was Interesting. also in a senior leadership position, in the last three organizations that I worked with. Correct. So, and then what happened was, at that point in time, of course, I had my business. I was running my tea cafe. Okay, And that's interesting. yeah, and at that time, one of my close friends, he had some back pain issues. Mm-hmm. And I had heard of, energy healing, pranic healing, etc. So, and I know that back pain के लिए कोई, एलोपैथी काम नहीं करती है उतना अच्छा. So I thought, why not give pranic healing a try? And that's when I started to learn, pranic healing. And that's where my journey began as a pranic healer. And I always love to learn new things. That's always been with me from a very very long time. और मैं थोड़ा सा उसमें सीखती गई, उसमें basic, advanced psychotherapy, etc. There are a lot of modules which are there. And simultaneously, they have another arm, spirituality arm side, which is called Aratic Yoga. Mm-hmm. So I finished that way back in 2018. Now, One second. So, आपने 18 साल कॉर्पोरेट में काम किया, आप सीनियर पोजीशन पे थे, आप कह सकते कि आप सीनियर मैनेजमेंट में पहुंच चुके थे, आप बड़ी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे और आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे थे. उसके बावजूद आपने तय किया कि मैं कुछ नया ट्राई करना चाहूंगी और वो भी आपने हेल्थ एंड वेलनेस की एक लाइन चूज की जहां पे बहुत सारी चैलेंजेस थी एंड उसके बाद भी आपने ये देखा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. तो क्या ब्रेक थ्रू था? व्हाट मेड यू मूव इनटू हेल्थ एंड फिटनेस? yeah, so I'm just coming to that. तो क्या हुआ, कोविड के दरमियान बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज हो गए, स्पेशली द फूड एंड रेस्टोरेंट बिजनेस गॉट बैडली अफेक्टेड, हम्म. दैट, एंड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस हैड टू रैप अप. तो मैंने भी सोचा कि ये आगे एफएनबी में नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी में और हीलिंग में काफी इंटरेस्ट था. ओके. और मुझे लगा कि ये मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी कैसा है, फिजिकल हेल्थ और वेलनेस में काफी सारा डेप्थ आ चुका है इन टर्म्स ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन, राइट? कि पहले जो हेल्थ केयर था, 10-15 years बैक, और अभी का जो है वो बहुत ही डिफरेंट है. और उसमें इतने सारे एडवांसमेंट हुए हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, मेडिसिन. तो मैंने देखा कि अभी इसका तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, और हम स्पिरिचुअलिटी में ये भी पढ़ते हैं कि देयर इज अ लॉट मोर बियॉन्ड फिजिकल बॉडी, वेयर पीपल आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट होलिस्टिक वेलनेस, मेंटल हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ओके. आपने ये भी सो देखा होगा. तो आप ये कह रहे हैं कि कोविड एक ट्रिगर था, साथ साथ में आपको, जैसे आपके शब्दों में आपने बताया कि आपको एक कीड़ा था, कुछ करना है मुझे,
और स्पेसिफिकली आपको हेल्थ एंड फिटनेस के क्षेत्र में काम करना था। तो किस तरह से आपकी ये जो फर्म है एडिटर्स वेलनेस, वो किस तरह से बनी, उसका क्या बेसिस है और उसमें आप क्या सिखाते हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है? Okay. So, like I said, holistic wellness is our base. So, let me just talk a little bit about holistic wellness क्या है. ठीक है. तो क्या है आप मानते हैं, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, क्या है आप मानते हैं कि इमोशनल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग इंटरकनेक्टेड है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स. तो क्या एक आप एग्जाम्पल दे सकते हो? ऑफ कोर्स मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी, बट क्या एक आप रैंडमली कोई एग्जाम्पल सोच के आप शेयर कर सकते हो ऑडियंस के साथ? या सो अगर आपका लेट्स से मूड खराब है तो आपका दिन खराब जाएगा, एंड देन प्रॉब्ली आप कुछ ओवर रिएक्ट करेंगे और ये एक साइकिल बनता जाएगा आपका। या अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि अगर आपके पैरों में दर्द है या कुछ आपका पेट गड़बड़ है तो भी आपको वो सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, एंड दिस कैन स्पाइरल इनटू समथिंग एल्स। Right. सो यस, So इट इज perfect. इंटरकनेक्टेड। Yes, yes. So we realize that it is all interconnected और उसको सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से देखना एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा. तो इसीलिए हमने होलिस्टिक वेलनेस का पूरा ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. ओके। और मैं उसमें को फाउंडर हूँ, मेरे साथ और भी एक को फाउंडर है जी। जो वो भी अराटिक योगा प्रैक्टिशनर है, वो भी प्राणिक हीलर है. ओके। ठीक है. और हमने ये सोचा कि कॉर्पोरेट्स में बहुत इसकी अपॉर्चुनिटी भी है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि कॉर्पोरेट में हमें पता है कि स्ट्रेस लेवल कितना होता है. राइट. इट इज वेरी वेरी डिमांडिंग, यू नो, इन एवरी वेज. तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर और हमारे पास एक्सपर्टीज भी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सॉल्यूशंस क्यूरेट करें एट इंडिविजुअल लेवल एंड एट कॉर्पोरेट लेवल बोथ. परफेक्ट, ग्रेट। क्योंकि आपने जिस तरह से बात की कॉर्पोरेट की और आपने ये जो 5 मुद्दे बताए, सो ये एक पिटारा ओपन करता है कि बहुत सारी चैलेंजेस है लोगों के सामने, एंड स्पेशली पीपल वर्किंग टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप खुद 18 साल काम करके आए हैं एट सीनियर लेवल। तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि टॉप 3 ट्रिगर्स क्या है कॉर्पोरेट लाइफ में जो लोगों को परेशान करते हैं, और आपकी संस्था, आपकी जो फर्म है, उसे किस तरह से बेहतर मैनेज करने में मदद रूप होती है? सो जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस, विल टेक वन एग्जाम्पल. ओके. तो स्ट्रेस में कैसा होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑरा एंड चक्रास ओवर हियर. ओके. एंड दैट इज द बेसिस ऑफ आवर स्टडी. जो हमारी स्टडीज है उसके बेसिस पे है, बिकॉज प्राणिक हीलिंग डील्स विद ऑरा एंड चक्रास. ओके। तो हम ये बेसिस को लेके आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे. तो क्या है, ये जो स्ट्रेस एनर्जी है. जस्ट अ सेकेंड, आप कॉमन मैन के लिए व्हाट इज प्राणिक हीलिंग, व्हाट इज ऑरा, व्हाट इज चक्रा, उस पर अगर आप कुछ 30 सेकेंड के लिए बता सकते हैं वो बेहतर होगा. राइट. सो बेसिकली हम जो देख सकते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी देख सकते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है हमारा एक ऑरा होता है, जिसको संस्कृत में सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में बोलते हैं एथरिक बॉडी. ठीक है. जिसको हम ऑरा बोलते हैं जनरल लेमैन लैंग्वेज में. ऑरा तो सबने सुना ही होगा. और आभा मंडल भी बोलते हैं अगर शुद्ध हिंदी हम अगर यूज करें तो. बेहतर. या ठीक है. तो क्या है, ये ऑरा होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है. एंड वो हमारी फिजिकल बॉडी को इंटरपेनिट्रेट करता है, मतलब हमारी बॉडी फिजिकल बॉडी के अंदर भी है और बाहर भी है. तो इसीलिए पहले जो कहावत थी कि व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम, एक्चुअली वो ट्रू है. लेकिन जो साइंस है इसके पीछे, वो शायद किसी ने इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लोर किया होगा. तो इसलिए मैं ऑडियंस को अभी आपके जरिए या इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती थी. तो हम क्या करते हैं, ये सारी बॉडीज पे हम काम करते हैं. और हमारे जो सॉल्यूशंस है वो क्यूरेटेड है, या हमारे सॉल्यूशंस जो भी इश्यूज है उसके लिए जो हमने सॉल्यूशंस बनाए हैं, वो इन सारे बॉडीज की स्टडी को मद्देनजर रखते हुए, और प्राणिक हीलिंग और अराटिक योगा में हमने जो जो भी सीखा है उसको ध्यान में रखते हैं, और सॉल्यूशंस हमने तैयार किए हैं जो हम इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे हम प्रोवाइड करते हैं. आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप यू कैन केटर टू पीपल हु आर इनटू स्ट्रेस, यू केटर टू इंडिविजुअल्स, यू केटर टू कॉर्पोरेट्स. तो यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि इज इट सेम अप्रोच फॉर एवरीबॉडी और इज इट स्पेसिफिक टू अ प्रॉब्लम? किस तरह से आप इसे डील करते हैं? आप 1-to-1 सेशंस लेते हैं, आप कॉर्पोरेट लेवल पे ग्रुप सेशंस करते हैं,
किस तरह का डायनेमिक्स होता है? सो बेसिकली कॉर्पोरेट्स में कैसा है, वी नो दैट ये हमारे 5 इश्यूज टॉप इश्यूज है, तो हमारे सॉल्यूशंस जो है वो ग्रुप सेशंस के लिए क्यूरेटेड होते हैं। ओके। ठीक है, लेकिन वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है वो उनको ग्रुप में बैठ के ही करना है। बट हम्म। हम क्या करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसके थ्योरी के बारे में, तो ओके। उनको एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, तो हमें और डिटेल में उनको एक्सप्लेन करते हैं। ओके। राइट, और उनको ऐसे टेक्निक्स यूज समझाते हैं जो वो खुद से भी कर सके। ठीक है, ओके। और इंडिविजुअल लेवल पे हम ज्यादातर हीलिंग सेशंस लेते हैं। हम ओके। ज्यादा इतना काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड, जहां पे, पर हम हीलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि आपको वहां पे बहुत पर्सनलाइज सर्विसेज मिल जाती है। ठीक है, करेक्ट। आपके इश्यू के अकॉर्डिंग हम आपको क्यूरेट करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आपको क्या सॉल्यूशंस है। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे सॉल्यूशंस है, जैसे प्राणिक हीलिंग सेशंस हम देते हैं, ओके। या फिर हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज हम्म। करते हैं जिसको हम्म। हम प्रोग्राम और कॉन्सिक्रेट करते हैं। ठीक है, हम एसेंशियल ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर एरिया ऑफ फोकस इज फॉर इम्प्रूवमेंट, ओके। जिसका वेलबींग सो इंप्रूव करना है। सो आपने अगेन तीन चार सॉल्यूशंस ऑफर किए। वन इज यू मेंशन अबाउट ब्रीदिंग टेक्निक, टू यू मेंशन अबाउट क्रिस्टल्स, थ्री यू मेंशन अबाउट काउंसलिंग। तो ये जो आपकी तीन चार मेजर टेक्निक्स है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं, मैंने तो आपको सिर्फ एक क्विक टेक्निक बताया कि ब्रीदिंग टेक्निक, तो ब्रीदिंग तो आप टेक्निक ब्रीदिंग में, टेक्निक पे थोड़ा डिटेल में बताइए, बिकॉज इट या इज एक हाँ, तो टेक मैं अवे वही, होगा। हाँ। राइट राइट, सो ब्रीदिंग टेक्निक में क्या होता है, करंटली हम जो कोई भी जो ब्रीद करते हैं, नॉर्मली हम जो है चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, मतलब चेस्ट इन एंड आउट होता है जब हम ब्रीद करते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्मली। ओके। ठीक है, लेकिन अगर आपने बेबीज को देखा होगा कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो उनका जो है वो स्टमक इन्फ्लेट और डिफ्लेट डिफ्लेट होता है। जब उनको आप देखोगे तो आप ये यूनिक देखोगे कि, और एक्चुअली वो ब्रीदिंग टेक्निक इज मोर राइट, आई वुड से। सो लेट्स डू इट, सो आपको एक क्विक टेक अवे भी होगा आपके ऑडियंस ओके। के लिए भी। श्योर। सो लेट्स क्लोज द आइज, लेट्स फोकस ऑन आवर ब्रेथ, forget everything else that is going on around. Now let's inhale slowly and inflate our stomach. Hold and exhale slowly from our stomach and hold. अब मैं हिंदी में गाइड करूंगी। सांस अंदर ले और आपका जो पेट है वो थोड़ा सा फूलना चाहिए, सांस वहां तक जानी चाहिए। होल्ड करें और एक्सहेल करें, सांस छोड़े और होल्ड करें। आप इसको 5 से 6 बार या 7 बार रिपीट कर सकते हो। तो आपने बहुत बेहतरीन एग्जैक्टली। चीज बताई कि ये आप दिन में कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले आप कर लेंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फॉर अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, फॉर अ बिजनेसमैन, फॉर एन एंटरप्रेन्योर, वो बताइए। ओके, सो लाइक यू सेड, ये कहीं एक तो ये इजी है, राइट, ये क्विकली हो सकता है। आप 6-7 बार करेंगे तो आपका इंस्टेंटली क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, आप आपको रिपीट रेगुलरली करना और है। कंसिस्टेंटली जितना आप करोगे इस चीज को रिपीट, उतना बेनिफिट्स आपको महसूस होंगे। एंड लाइक आई सेड, यू विल नॉट रिएक्ट, आप है ना रिस्पॉन्ड करना, दोनों में अंतर है। ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करोगे, आप रिएक्ट नहीं करोगे। बहुत ठीक है। जरूरी है आज के युग में। तो आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात की। तो जिस तरह से आपने बताया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तीन शब्द आज हर कोई बात करता है। और ऐसा नहीं है कि कोई 60 साल के व्यक्ति को ही ये इश्यूज आते हैं।
आज 5 साल का बच्चा भी ये सफर करता है, 25 साल का युवा भी सफर करता है, और 70 साल के जो हमारे बुजुर्ग है वो भी सफर करते हैं। तो ये परिप्रेक्ष्य में आप क्या सुझाव देंगे? दो तीन टेक्निक्स आप बताइए जो इन चीजों पे हेल्पफुल होगी। ओके, तो इसमें जैसे हमने अभी ब्रीदिंग टेक्निक की, आप वो रेगुलरली कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक टेक्निक हो गई। दूसरी एक टेक्निक है कि जो भी हम नॉट जस्ट स्ट्रेस या फियर, जो भी हमारे इमोशंस है ऑन अ डे टू डे बेसिस पे, हम उसको एक पेपर पे लिख सकते हैं। आप कोई भी नॉर्मल पेपर ले सकते हो। ओके। आप वही इमोशंस दोबारा रिलिव करिए, ठीक है, उसको महसूस करिए वापस। मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मुझे बहुत ज्यादा फियर आ रहा है, आप वो चीजें लिखना शुरू कीजिए, ठीक है, So पेपर are के ऊपर। you referring to visualization? नो, आई एम नॉट रेफरिंग टू विजुअलाइजेशन। आई एम प्योरली रेफरिंग टू कि आपके जो मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और एथरिक बॉडी में से जो फियर या स्ट्रेस के की इमोशंस है, एनर्जी है, उसको हम एक्सटर्नलाइज करते हैं, उसको हम ओके। पेपर के ऊपर बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये लिखने, जब हम ये लिखने की एक्सरसाइज करते हैं। तो आप ठीक ये है, कह रहे हैं कि आपने जो इंटरनलाइज इमोशंस है उसे पेपर पे लिख के आप उसे एक्सटर्नलाइज करते हैं, और फिर ये एक्टिविटी आप बता रहे हैं वो करनी है। हमें क्या करना है, ये हमारे ऑरा में हमेशा ही रहता है, तो हमें उसको एक पेपर पे लिखना है। हमारे फीलिंग्स क्या क्या थे उस पूरे दिन के अंदर, हमें उसको लिखना है। मान लीजिए अब अगर मैं कोई मीटिंग से आया हूं और वो मीटिंग अच्छा नहीं गया है, मान लीजिए सीनियर और जूनियर का मीटिंग था, एंड देन वहां पे जूनियर आके फील करता है कि मैं अपनी बात तरीके से पेश नहीं कर पाया, फ्रस्ट्रेशन है, प्रेशर है, कहीं उनका कुछ इंसल्ट हुआ है, या जो भी फीलिंग्स है जो बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो उसे वो वहां पे पेपर पे लिखेंगे। उसके बाद उन्हें क्या करना है? एग्जैक्टली वो सारे पेपर पे हमें लिखना है, लेकिन मैकेनिकली नहीं, फील करके लिखना है उसको ओके। एक्सटर्नलाइज करने के लिए। ठीक है, और वो पेपर को जो है वो आप बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। ओके। एंड अनदर थिंग ऑफ कोर्स इज, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इज टू डू मेडिटेशन। ओके। नाउ आई वुड रेकमेंड मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स, क्योंकि वो प्राणिक हीलिंग में सिखाया जाता है। एंड इट इज अ कॉपीराइटेड ऑडियो, तो आप उसको ₹250 या जो भी है उसका आप ऑडियो मंगा सकते हो, फाउंडर की वॉइस में है। और उसके बाद आप दिन में कभी भी मेडिटेट कर सकते हो। 21 मिनट का मेडिटेशन है, एंड टू एंड। और हम मेडिटेशन इसके लिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि मेडिटेशन का इफेक्ट ये होता है कि वो आपके ऑरा को जो है वो क्लीन कर देता है, या आपका एफिशिएंसी जो है, आपका इंट्यूजन है, आपके रिलेशनशिप है, वो सारे इंप्रूव हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, परफेक्ट। एंड दिस इज So लाइक let's talk about अ so let's talk about the most important aspect now, since people who are watching us, they would be really keen on this, since आपने relationships की बात की है, तो young professionals, young entrepreneurs, maybe teenagers, Gen Z, they go through this relationship challenges time and again. In fact, there is a generational gap also which is happening within the families. तो यहाँ पे ये टेक्निक्स किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, और इसे किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं? सो ये जैसे जनरेशनल गैप हो गया या जो भी है, रिलेशनशिप हीलिंग एक अलग तरीके से हम करते हैं। प्राणिक हीलिंग में हम रिलेशनशिप हीलिंग भी करते हैं, उसके लिए सेशंस लेने पड़ते हैं। बट अगर अगर जनरल ऑडियंस को, पब्लिक को अगर करना है, तो हम ये जरूर कर सकते हैं। मैं आपको दो तीन चीजें क्विकली बता दूंगी। एक तो ये मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्रा है या अनाहता चक्रा जो है, उससे ये आपका हार्ट चक्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपके ऑरा के अंदर लव की एनर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ओके। बिकॉज ऑफ विच हम जो भी ब्लेसिंग्स करते हैं या जो भी हम करते हैं इसके बाद, उसके बाद वो चीजें मटीरियलाइज होना शुरू हो जाती है। बिकॉज वी आर ब्लेसिंग नॉट एज अ पर्सन, बट एट अ हायर, फ्रॉम अ हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके वजह से वो मटीरियलाइज और मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वही पर्सन जिसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, दैट पर्सन विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि उसकी एनर्जीज भी चेंज हो रही है उस एंड पे जब आप ब्लेस कर रहे हो उस पर्सन को। और जैसे उसकी एनर्जीज चेंज होंगी आपके तरफ, तो आपकी भी एनर्जी, तो गिव एंड टेक जो एनर्जी का है
वो बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, अच्छा हार्मोनियस हो जाता है, ओके बैलेंस्ड हो ओके जाता है। ओके, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट, लाइफ इज अबाउट गिव एंड टेक। ओके, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। करेक्ट। सो सिंस यू मेंशन अबाउट कॉन्फिडेंस, आपने क्लैरिटी पे बात की, आपने रिलेशनशिप इश्यूज पे बात की, लेट्स टॉक अबाउट मनी बिकॉज आई थिंक प्राइमरीली एवरीबडी इज लुकिंग एट मोर मनी एज यू मेंशन, मोर सक्सेस। तो दो चीजों पे सबका फोकस हमेशा रहता है और उनकी चैलेंजेस भी रहती है, वन इज मनी एंड वन इज सक्सेस। तो इस पे आप जो टेक्निक्स बता रहे हैं, ऑरा एंड होलिस्टिक वेलनेस, वो किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखिए, एक तो मनी इज ऑल्सो एनर्जी। ओके, दैट्स द ओके, बेसिक फैक्ट। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वी हैव लर्नड इन फिजिक्स, है ना, स्कूल में हमने ये सीखा है दैट एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। परफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। हम हमेशा देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है या हमें कहाँ पहुंचना है, हम हमेशा गैप के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो माइंडसेट है वो एक माइंडसेट ऑफ लैक है, कि मेरे मुझ में क्या कमी है, राइट, या इंटरेस्टिंग। मुझ में क्या प्रोफेशनली क्या कमी है, मुझ में पर्सनली या फाइनेंशियली क्या कमी है, तो हम उसके करेक्ट। ऊपर फोकस करते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड से आप में ग्रेटिट्यूड क्या बोलते हो, आपको प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करते हो, तो आप यू शिफ्ट फ्रॉम लैक टू अबंडेंस, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में हमारे पास क्या है हम ये देखते हैं। ठीक है, तो आपका हाँ, पूरा एंड फोकस शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम एग्जैक्टली, व्हाट यू सो डोंट हैव टू व्हाट यू हैव। correctly, and when you shift your focus from what you don't have to what you have, you already shifted from lack to abundance। ठीक है, और हम जितना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे हमारे पास जो ऑलरेडी है, तो उससे क्या है, हम ज्यादा वेल्थ या प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम अ स्पेस ऑफ अबंडेंस, ओके। ना कि फ्रॉम अ स्पेस ऑफ लैक। तो इसकी कोई दो तीन स्टेप वाली टेक्निक हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकता है जो हर कोई डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकता है? आप कुछ एब्सोल्युटली, बताना चाहेंगे? तो उसमें बहुत सिंपल टेक्निक है। ठीक है, आपको पहले तो ये देखना है कि आपके पास क्या क्या है जो आपको यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया है ऑलरेडी। अगर आपके पास घर है, व्हीकल है, ठीक है, खाने के लिए जो भी आप खाना चाहते हो वो है, तो आपको उसको लिखना है। ठीक है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर थ्री थिंग्स। मैं तीन चीजों के लिए आज बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरे वेल्थ, मेरा मेरा बैंक अकाउंट हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, आपके एफडीज हो गए, आपका इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, जिस आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हो गए। ठीक है, या अगर आप गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो, मैं तो सिंपल भाषा में आप ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आप स्वस्थ हैं, आपके परिवार में लोग स्वस्थ हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपके पास रहने के लिए अच्छी जगह है, सिंपल बट कंफर्टेबल लाइफ है आपके पास। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबके लिए, बिकॉज आई थिंक एक आम इंसान भी ये सोचता है कि मैं कल बड़ी गाड़ी में मूव करूंगा या बड़े बंगले में मूव करूंगा, पर वो वहां पे मिस कर जाता है कि उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा टू व्हीलर है, एक अच्छी सी छोटी गाड़ी ऑलरेडी है। तो वो वहां पे मिस करके आई थिंक वो बड़ी चीजों पे फोकस करता है और अपना पूरा अटेंशन लैक पे चला जाता है। करेक्ट, तीन चीजें, आपके प्रोस्पेरिटी, एसेट्स जो भी है आपके पास, वेल्थ रिलेटेड, आपको लिखना है एवरीडे। थ्री ओके थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं इसके लिए आभारी हूँ। ठीक ओके, है, मैं मेरे पास गाड़ी है या टू व्हीलर है, वो जो भी है, व्हाटएवर। मैं उसके लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस इन माई लाइफ। ठीक है, और आई हर एम कोई ग्रेटफुल, अपनी मातृभाषा में ये लिख सकता है एंड एब्सोल्युटली, ही कैन एक्सप्रेस दिस इन हिज ओन लैंग्वेज। राइट। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है, वाइब्रेशंस जो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। ठीक है, तो आपको फील बिकॉज करके आपकी इमोशंस को ट्रांसलेट करके हुए लिखना है कि आप जो लिख करेक्ट, रहे हैं वो फील भी कर रहे हैं साथ में। तो पहले पहले आप मैकेनिक के लिए भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सो द आइडिया इज कि आपको स्टार्ट करना है और इन चीजों को हमें रोज चेंज करना है, नई नई चीजें लिखनी है जिसके लिए हम आभारी है। आप करेक्ट। 7 डेज तक पहले ये करिए,
ठीक है, 7 दिन लगातार करिए। अगर एक आध दिन ब्रेक हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करिए। ठीक करेक्ट। है, और फिर आप उसको 14 डेज करिए, 21 डेज करिए, और फिर आप देखेंगे जैसे आपके ऑरा में, आपके चक्रास में ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज आ जाती है। व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, बहुत करेक्ट। पुरानी कहावत है, राइट? हम जो बोते हैं वो पाते हैं। तो करेक्ट। आपको अगर प्रोस्पेरिटी चाहिए, आपको इनकम चाहिए, आप किसी को एनेबल करोगे, आप किसी को सपोर्ट करोगे, तो आपके पास ऑब्वियसली वो आना ही आना है। देयर एब्सोल्युटली, इज नो टू एब्सोल्युटली। वेज अबाउट इट। सो वी हैव आई हैव अ सेपरेट कम्युनिटी, फॉर प्रोस्पेरिटी, मैनिफेस्टिंग हम्म। प्रोस्पेरिटी। तो हम्म। उसमें हम यही चीजों को फोकस करते हैं कि आपके पास वो प्रोस्पेरिटी का फ्लो जैसे है वो कंटिन्यूस कैसे हो। ठीक है, करेक्ट। लेकिन हमारे थोड़े से और टेक्निक्स है जो हमने क्यूरेट किए हैं, और उसको हम प्रेजेंट करते हैं। आप उसको खरीद सकते हो। बहुत सारे हैं ऑप्शंस, क्रिस्टल्स है, फिर कॉन्सिक्रेटेड मैनिफेस्ट प्रोस्पेरिटी टू कॉन्सिक्रेटेड चेकबुक टेक्निक है। तो आप उसको उसको भी आप किट परचेज कर सकते हो। इस दिवाली आप ट्राई भी कर सकते हो उसको। ठीक है, आप इन्वेस्ट करो ये सारी चीजों में, तो आपका रिलेशनशिप विथ मनी जो है वो बहुत ही टूवर्ड्स सात्विक टाइप्स हो जाएगा, एंड इट करेक्ट। विल जस्ट फ्लो। आपको एफर्ट्स कम लगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपके झोली में गिर जाएंगे, लेकिन आपको कम एफर्ट्स में आपको आउटपुट जो है, आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, और करेक्ट। बेटर रिजल्ट मिलेगा। Correct. So I think we had a great conversation, and since we are coming to the end of the session, somebody who's into early 20s, उसे यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए थ्रू द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ? वो अपनी स्ट्रेसफुल करियर की शुरुआत कर रहा है, चाहे वो बिजनेस में है या जॉब्स में है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स में है। एनीबडी इज ट्राइंग टू मेक ए करियर इन देयर अर्ली 20s, उन्हें होलिस्टिक अप्रोच से क्या फायदा हो सकता है और उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? Okay, so when you're talking about, see, अभी everything is very very competitive. You also know कि हर एक जगह कंपटीशन है, और कंपटीशन की वजह से प्रेशर भी आता है, राइट? तो एक तो आप इग्नोर मत कीजिए, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे बहुत फोकस रहता है हमेशा, जी। स्पेशली पीपल हु आर इन स्पोर्ट्स, और कॉर्पोरेट लाइफ में भी अभी बहुत सारा फिजिकल वर्कआउट्स और जिम और वो सब तो करते ही है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके इमोशंस है उसको भी आपको डील करना आना चाहिए, ओके। because that is the key differentiator between people who are very successful and people who are average. ओके। ठीक है, एंड ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी भी खोल देता है पूरा, कि आपको एक जो टिपिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, जहां पे आप पिवट कर सकते हैं इनटू अ डिफरेंट करेक्ट। एरिया You move ऑल into the टुगेदर। next league straight away. करेक्ट, यू एक्चुअली गो टू अ नेक्स्ट लीग, आपको वो मिल जाएगा ऑप्शन। और अभी ऐसा चलन है कि आईपीएल में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा दिख गया तो देन यू हैव बेटर Visibility. अपॉर्चुनिटीज, या True, विजिबिलिटी true, मिल true, जाती है। true. ठीक है, टू गेट इनटू द अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो उसका क्या है, जो है वो, एज ही इज अ बैटर, तो उसका फ्रंट लाइन बैटर, तो उसका जो है वो स्कोर्स एवरेज जो 100 स्कोर करता था उसका, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज, तो वो उसका स्कोरिंग हो गया 20-25 पे, वो आउट हो जाता है, उसको बहुत एंग्जाइटी होती थी Okay. और वो परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो उसको मैंने शायद तीन सेशंस, हीलिंग सेशंस दिए, तो उसके जो स्कोर है वो इम्प्रूव होके 75 तक गए। Okay. राइट, ही स्टार्टेड स्कोरिंग 75 रन्स। और उसके बाद जो है मैंने उसको एक कॉन्सिक्रेट करके एक क्रिस्टल दिया, Okay. क्योंकि वो ऑरा में जो है वो एनर्जीज होनी चाहिए फॉर सक्सेस, फॉर अबंडेंस एंड फॉर प्रोस्पेरिटी, राइट? तो मैंने उसको एक बड़ा सा क्रिस्टल कॉन्सिक्रेट करके दिया फॉर विद दीज एनर्जी ऑफ सक्सेस, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। और एंड उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, he got a lot of opportunities, and latest abhi he didn't get selected in IPL, but he got selected for Mumbai level पे जो IPL होता है, Oh, जहाँ पे that's ऐसे interesting. छोटे छोटे टीम्स होते हैं, तो he got selected That's a for good that. recognition for sure. Yes. It is a very good recognition, and then a player like Surya Kumar Yadav recognized him. तो So ये that's a good बहुत breakthrough बड़ी for your club. एब्सोल्युटली, और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो सकती है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आपको एफर्ट्स कम करने हैं, आपका एफर्ट और स्किल सेट आपको तो रेगुलरली अपग्रेड करना ही है, लेकिन आपका जो वो एक एक्स फैक्टर जो होता है, जो मिसिंग होता है, Right. वो वी हेल्प यू ब्रिज द गैप।
for that Correct. Correct. with our Correct. solutions. Wonderful. I think, Rachna, we had a great session today and we delved into a lot of topics. आपने corporate career की बात की, आपने entrepreneurs पे बारे में बात की. You mentioned about the confidence and the clarity which one gains through this. You mentioned about the performance pressure and how to deal with those performance pressures. And most important, the relationships. कि money relationships हो सकती है या one-to-one human relationships हो सकती है. तो at the end, would you like to give 2-3 tips to our viewers which will help them holistically to improve their life? So मैंने शायद टिप्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं. So I'll just recap those tips. आप एक तो मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स तो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड फॉर एवरीबडी टू डू. ओके. सेकेंड इज आप जो है वो आपके जो इमोशंस है उसको प्रोसेस कीजिए. ठीक है. थ्रू राइटिंग आउट योर इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस है आप उसको बाहर निकालिए. या जर्नलिंग करके पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड टेयर इट और बर्न इट. ठीक है. आपको उसको रखना नहीं है. तो ठीक है. आप ये टेक्निक या डेली आप रोज कर सकते हो. आप उसको रोज कर सकते हो. एंड आई वुड रेकमेंड कि आप अगर इमीडिएटली कर सकते हो, जैसे कोई इंसिडेंट हो गया आप इमीडिएटली भी कर सकते हो. जैसे मीटिंग में आपका मीटिंग अच्छी नहीं गई तो आप इमीडिएटली भी उसको आप लिख सकते हो, क्योंकि तभी वो फ्रेश होता है. ठीक है. तो डोंट वेट फॉर द एंड ऑफ द डे, यू कैन राइट, बट रिमेंबर कि आपको एंड ऑफ द डे वो पूरा बर्न कर देना है, आपको रखना नहीं है. उसको डिस्ट्रॉय कर देना है. ठीक है. आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंस रिलेटेड आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. आप ये चीज कर सकते हो. मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स करने के बाद आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो उसको ब्लेस कर सकते हो इमीडिएटली आफ्टर मेडिटेशन विदाउट ओपनिंग योर आइज. ठीक है. आप रेगुलरली ब्लेसिंग करोगे उसको विद लव, स्वीटनेस, टेंडरनेस, जो भी आपको जो भी इमोशंस उस पर्सन के अंदर चाहिए आप उसको ब्लेस कर सकते हो मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट के बाद. आप अगर ये मैंने बहुत 3 टेक्निक्स मैंने बताई. ठीक है. आप इनको ही अगर यूज करते हो बहुत अच्छे से और बहुत रेगुलरली और कंसिस्टेंटली, द की वर्ड ओवर हियर इज कंसिस्टेंटली. ठीक है. तो यस, तो आपके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप डेफिनेटली देख सकोगे. Perfect. I think, Rachna, we had a great session today, and for all our viewers, once again, we especially want to thank you, Rachna, for your time and availability. And I think we had a great takeaway. So thank you for your time, and we'll catch up soon. Thank you so much. Thank you so much, Darshan, for having me here. Thank you. Thank you. Thank you so much.